Suresh Bhai from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about 12th physics, paper 2, topic electromagnetic induction. In this topic, we are discussing about the subtopic, that is applications of Lenz law. Before going to applications of Lenz law, please subscribe my channel. Like, share and subscribe. Now, to the previous lecture, we have discussed about the Lenz law. Now, here it is. Look at this video again. Now, coil is there, magnet is there. When magnet is moving towards the coil, at that time, a current is induced in the coil. Okay, look at this current there. The anti-clockwise current is generated as n pole of the magnet is facing. The current generated in the coil, that is also constructing a magnetic field, generating a magnetic field, and that pole is also n pole. Okay, anti-clockwise current and generating n pole is there. That you have to remember there. ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों को याद रखना है. Now, if the magnet is moving away, अब ये away लेके जा रहे हैं हम लोग, coil से दूर लेके जा रहे हैं. ठीक है, at that time current is induced in the coil and that current is clockwise. Look at this direction of the current. Current का direction देखो क्या है, and that is generating S pole. ये जो magnetic field generate हो रहा है current की वजह से, वो S pole generate हो रहा है when the magnet is moving away. Okay, ये जो fact है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. यही Lenz law ने बताया था. ठीक है, तो in today's session we are going to discuss about that is a motion of a magnet towards a loop. जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही हम लोगों को अब ये जो वीडियो देखा उसी को हम लोगों को डिस्कस करना है. ना क्या हुआ था, अब ये देखो जो वीडियो में क्या हुआ था वो देखो. As a magnet is moved towards the loop, the current is induced in the loop. The induced current in the loop produces a magnetic dipole. The dipole is oriented in such a way that it opposes the motion of the magnet. Thus, the loop's north pole must face approaching the north pole of the magnet so as to repel it. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. ठीक है, अब देखो n पोल, यहाँ पे n पोल जनरेट हुआ जो यहाँ पे बताया. Now, अब देखो, thus the loop's north pole must face the approaching north pole of the magnet. Loop का भी n pole है, magnet का भी n pole है. That is indicated there. Got it? Now, इसकी वजह से क्या होगा? There is a force of repulsion between them. Now, the curled right-hand rule for the magnetic dipole or the magnetic field will provide the direction of induced current in the loop. तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो किससे हम लोगों को मिलेगा? दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल से, या कर्ल्ड राइट हैंड रूल. दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट. ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाई देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ एन पोल. गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? नाउ अभी ये जो हम लोगों ने बताया अभी यही है. देखो, मैग्नेट्स मोशन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द कॉइल. ओके, तो ये एन पोल इज स्पेसिंग देयर, दैट्स व्हाई हियर इज अ एन पोल इज जनरेटेड. दोनों एंड को यहाँ पे एक पोल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पोल जनरेट हो रहा है. दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है और यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है. Okay, that means at the both ends there is a generation of two different poles are there.
Got it? And that's why it is generating a magnetic dipole. ये जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया था मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे जनरेट हो गया. ठीक है, तो ये याद रखना. एंड मैग्नेटिक डाइपोल का एन पोल किधर है? मैग्नेट की तरफ है. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट. ये करंट का डायरेक्शन दिखाया देखो, ये ऐसे करंट का डायरेक्शन है. ठीक है, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक डाइपोल इज जनरेटेड. एन पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द एन, एस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, नाउ अब देखो इसी को और थोड़ा डिटेल में. नाउ इफ द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द लूप, the current will be again induced in the loop in such a way that the loop will have the south pole facing the retreating north pole and will oppose the retreat by attracting it. जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो यदि हम लोग वो मैग्नेट का एन पोल अवे लेके जाते तो वहां पे एस पोल जनरेट होता है जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है. ओके, दैट मींस उस वक्त the induced current in the loop will now flow in clockwise direction. उस वक्त करंट कैसे था? clockwise direction में था. अब वही मैं डायग्राम में दिखाता हूं. देखो भी 4 मैंने डायग्राम्स दे दिए. अब देखो ये यहाँ पे एक लूप मैंने कंसीडर किया. when n pole is moving towards the coil, ये n पोल के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. ये जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होती है यहाँ पे इस लूप में करंट जनरेट होता है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ये करंट का डायरेक्शन है. ये कैसे? इस डायरेक्शन में गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ. ओके, तो यहाँ पे एन पोल जनरेट होने वाला है. यदि यही मैग्नेट हम लोग ऊपर लेके जाते, अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड फिगर देखो, ये मैग्नेट मैंने ऊपर लेके गया तो उस वक्त जो करंट जनरेट होने वाला है ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, मतलब वी आर गेटिंग दिस करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया एरो से, तो ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा. व्हेन n pole is moving away from the loop, when n pole is facing towards the loop, anti-clockwise current is generated. When n pole is moving away from the loop, at that time clockwise current is generated. मतलब यहाँ पे n pole जनरेट हो रहा है, यहाँ पे s pole जनरेट हो रहा है. Got it? तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाया. देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होता है तो एन पोल जनरेट होगा, क्लॉकवाइज करंट पास होता है तो एस पोल जनरेट होगा. ओके, ये अच्छे से याद रखना है. अब देखो थर्ड एंड फोर्थ डायग्राम, दैट इज फॉर द एस पोल ऑफ द मैग्नेट. ये हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें एन पोल था. अब एस पोल, इफ एस पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, एट दैट टाइम देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा व्हेन एस पोल इज मूविंग टुवर्ड्स. गॉट इट? अब देखो ये पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम, दोनों में मैग्नेट लूप की तरफ जा रहा है, लेकिन एक में मैग्नेट का एन पोल था, दूसरे में मैग्नेट का एस पोल है. इसलिए ए जो डायग्राम है, डायग्राम फिगर ए, उसमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुआ, लेकिन फिगर सी में यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुआ. गॉट इट? ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है. सिर्फ मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है और मैग्नेट अवे जा रहा है, इतना याद मत रखना. दैट इज व्हिच पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ व्हेन एस पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, एट दैट टाइम देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ एंटी क्लॉकवाइज करंट. ओके, यही लेंज ने बताया था. दैट मींस द magnetic field generated by this induced current opposes the motion of the bar magnet. बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है, यही लेंज ने बताया था. Got it? And that is nothing but the application there. Understood this one? That is the generation of n and s pole. कब? ये याद रखो, क्लॉकवाइज करंट पास होता है तो एस पोल जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होता है तो एन पोल. समझने के लिए ये दोनों डायग्राम आप लोग अच्छे से याद रखना. ठीक है, कब कौन सा करंट जनरेट होने वाला है. गॉट इट? ये याद रहेगा. दैट इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ we'll discuss about the second application there, that is energy conservation in Lenz law. अब देखो, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी का नेक्स्ट पार्ट है. Now we have learned that the cause of the induced current may be either, अभी जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है उसका कॉज क्या क्या हो सकता है. ओके, these are the two causes are there. First one,
द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कंडक्टर का हो रहा है, तब ये पॉसिबल है। सेकेंड, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी सर्किट, स्टेशनरी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। दीज आर द टू कॉजेस आर देयर, इसमें से दोनों में से होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब एक एक कॉज का बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ इन द फर्स्ट केस, जो यहाँ पे मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मूविंग कंडक्टर इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट, मतलब फोर्स exerted on the conductor by the magnetic field is opposite to the direction of its motion and thus opposes the motion of the conductor. ठीक है, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। Okay, the scientist Lorentz have discovered that force is there. Later on, we are going to discuss about the detailing here. But this thrust is nothing but the Lorentz force. ये कितना जनरेट होता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये जो थ्रस्ट है, ये जो फोर्स है, इसका डायरेक्शन कैसे होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, एंड हेंस व्हाट हैपेंस, इट अपोजेस द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे EMF इंड्यूस होता होगा या करंट इंड्यूस होता होगा। Got it? Now, in the second case, the current sets up a magnetic field of its own, which is within the area bounded by the circuit. Is अब सेकेंड कंडीशन में क्या होता होगा, यहां पे हम लोगों ने दिया है that the current sets up a magnetic field. करंट उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है, और वो कहां पे, उसका एरिया कहां पे, इट इज एरिया बाउंडेड विद इन द सर्किट देयर, वो उसके सर्किट के आजू बाजू में ही कर रही है, एरिया है। नाउ उसमें से अब देखो, उसमें दो कंडीशन है, अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंक्रीजिंग। अब देखो, in the second case the current sets up a magnetic field of its own which is within the area bounded by the circuit is, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा है, देखो इसमें से पहला कंडीशन, ठीक है, सेकेंड केस का उसमें से पहला कंडीशन, अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इफ दिस फील्ड इज इंक्रीजिंग, यदि फील्ड इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। ओके, जो आप लोगों ने अभी ये जो देखा था वो देखो, ये है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल। ये दो एरो दिखा रहा है, एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। नाउ व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एन पोल है, मतलब क्या हुआ, दे आर अपोजिट। ये जो एरो या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके भी डायरेक्शन आप लोग चेक कर सकते हो। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से ओपन होके इस साइड में जा रही है, गॉट इट, एन पोल, मैग्नेट से एन पोल से अवे जा रही है। ओके, इसीलिए यहां पे भी एन पोल है, इससे भी अवे जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कब, ये मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। ओके, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट ये कॉइल के नजदीक आएगा, मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, गॉट इट, इसलिए वर्ड इंक्रीजिंग मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त कैसे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, गॉट इट। नाउ सेकंड कंडीशन देखो क्या है, उसी का सेकंड कंडीशन, जो सेकंड केस का सेकंड कंडीशन है, इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल फील्ड इफ द फील्ड इज डिक्रीजिंग। अब ये फील्ड डिक्रीज कब होगा, व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से हम लोग दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ओके, तो ये डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखो वीडियो में हम लोगों ने ये ऑलरेडी स्टडी किया था, ये मैग्नेट इज मूविंग दिस दिस डायरेक्शन देयर। अब देखो मैग्नेट का डायरेक्शन, वी आर मूविंग अवे, सॉरी ये मूविंग अवे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहने वाला है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज मूविंग अवे, दैट्स व्हाट हैपेंस हियर, इट इज the strength of the magnet is decreasing, field is decreasing there, and at that time ये coil के अंदर जो magnetic field generate हुआ उसमें कौन सा pole generate हुआ है, S,
तो अब लाइंस ऑफ फोर्स देखो, एन पोल से अवे जा रही है लेकिन टूवर्ड्स द एस पोल, मतलब ये यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो एस पोल यहाँ पे जो कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है ये एरो। गॉट इट? मतलब ये दोनों का डायरेक्शन हुआ सेम। गॉट इट? मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अंडरस्टूड दिस वन? तो ये हम लोगों को समझना है। When field is increasing, direction of the both the magnetic fields are opposite to each other. When the field is decreasing, direction of the both the magnetic fields are same. Okay, thus we conclude that Lenz's law is a necessary consequence of law of conservation of energy. तो law of conservation of energy का consequence है, तभी ये possible होगा, otherwise possible नहीं होगा। What it means, यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी लगाना पड़ता है so that the magnet can be moving towards the coil or moving away from the coil, because ये जो coil है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है जब भी हम लोग मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं। ठीक है, these are the terms that is related to the energy. Now we will discuss about the next point. What is it? Third point is there, लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, ओके, वो डिस्कस करना है हम लोगों ने। अब देखो, कंसीडर फैराडेज लॉ विथ स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन। मतलब हम लोगों को मालूम है कि फैराडेज लॉ क्या था, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये नेगेटिव साइन ऐड किया है। That's why we are attending that special attention to the negative sign. E is equal to minus d phi by dt. ये हम लोगों को टर्म मिला। Now consider that area vector, a vector of the loop perpendicular to the plane of the loop is fixed and oriented parallel, that theta is equal to 0 to the magnetic field B vector. अब देखो, area vector, area and area vector, these are the two different quantities are there. Area vector is a vector perpendicular to the area. Okay, इसीलिए यहाँ पे perpendicular to the plane लिखा है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों में कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इंक्रीजेस विथ टाइम। हम लोगों ने कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर दिस वन, दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इंक्रीजेस विथ टाइम। नाउ इंक्रीजेस विथ टाइम, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अभी याद रखना है वो प्रीवियस कंडीशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, द फैराडेज लॉ कैन बी रिटन एज, ठीक है, तो E is equal to minus d by dt of what is the magnetic flux there, that is a B vector dot A vector. As we are well known that magnetic field is nothing but the magnetic flux per unit area. So phi is equal to B vector dot A vector. Is out of this one we have taken that is the area vector which is having constant magnitude there, and that is taken outside this derivative sign. That's why we are getting minus magnitude of A vector, that is a d by dt of magnitude of B vector. यदि हम लोग magnitude consider करते तो हम लोगों को ये टर्म मिलेगा। Now ये इक्वेशन 12.5 है। अब इसका राइट हैंड साइड, अब देखो RHS is equal to negative quantity, whatever it may be, ये negative quantity आ गया, negative sign है इसलिए negative quantity, as magnitude of A vector is a positive and dB by dt is a positive as B is increasing with time. As जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है, that is magnetic field increases with time, increases है इसलिए dB by dt always positive रहने वाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों आया वो देखना है हम लोगों को। ये इक्वेशन कैसे होता है ये हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब अभी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन कैसे आया या लेफ्ट हैंड साइड क्यों नेगेटिव होना चाहिए वो हम लोगों को डिस्कस करना है। राइट हैंड साइड में तो मैथमेटिकली हम लोगों को नेगेटिव साइन दिख रहा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ई जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखो द स्क्रू ड्राइवर रूल, जो आप लोगों ने अभी स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल जैसे आप लोग बोल सकते हो, दैट इज गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। रूल फिक्सेस द पॉजिटिव सेंस ऑफ सर्कुलेशन अराउंड द लूप एज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस लॉ के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, कब, इफ इट इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब देखो जैसे हम लोगों ने बोला है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो पोल जनरेट होने वाला है वो या करंट जनरेट होने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एज द सेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज काउंटर क्लॉकवाइज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये इसको निगेटिव बोलेंगे, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव बोला है, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, लेकिन करंट जो लूप में जनरेट होने वाला है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। द सेंस ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नेगेटिव, मतलब यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव करंट कंसीडर करते हैं। तो एज वी आर वेल नोन दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेम, ओके दैट्स व्हाई यदि इंड्यूस्ड करंट नेगेटिव है तो ईएमएफ आल्सो नेगेटिव। दैट इज द LHS of equation 12.5. Got it? Is indeed a negative quantity in order to equal to the right hand side. समझ में आ रहा है? ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी निगेटिव क्वांटिटी है, इसीलिए वहां पे राइट हैंड साइड मैथमेटिकली उसी में राइट हैंड साइड में भी निगेटिव क्वांटिटी आ गया। दस द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन E is equal to minus d5/dt incorporates Lenz law into Faraday's law. Got it? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, यदि हम लोगों ने ये इक्वेशन सिर्फ निगेटिव साइन ले लिया फैराडेज लॉ में तो ये लेंज लॉ होता है। ओके, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि लेंज लॉ में फैराडेज लॉ इंक्लूडेड है या फैराडेज लॉ में लेंज लॉ इंक्लूडेड है, इनकॉर्पोरेट्स। ओके, सिर्फ यहां पे दोनों में क्या है, निगेटिव साइन का डिफरेंस था। Understood this one? And that is explained by the scientist Lenz. Faraday's law में सिर्फ इतना नेगेटिव साइन वहां पे ऐड किया है लेंज ने। Understood this? That is next point, or that is we can able to say that is a Lenz law and Faraday's law. That is a in between them. What is the relation there? Now we have to discuss about that is a flux of the field. ओके, अभी तक हम लोग फाई या मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे थे। अब ये एक्चुअली क्या क्वांटिटीज है और कैसे हम लोग यूज करते हैं, दैट वी हैव टू कंसीडर दैट। ओके, अब देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग फैराडेज लॉ वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और कैसे हम लोग निकालते हैं, ओके, इसके बारे में हम लोगों को मालूम होना जरूरी है। ओके, फॉर दैट वन एज शोन इन फिगर 12.4, अब ये 12.4 डायग्राम आ गया अब जो टेक्स्ट बुक में है। ओके, तो 12.4 कंसिडर अ स्मॉल एरिया डीए वेक्टर। अब देखो एक छोटा एरिया आप लोगों को दिखाया है डीए वेक्टर देयर, ठीक है, स्मॉल एरिया इज देयर। नाउ इट इज in the direction in which the right-handed screw will move if rotated in the sense of the arrow on the curve. तो यदि हम लोग स्क्रू को ये जो डायरेक्शन दिखाया है इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू इनहांस होगा, आगे जाएगा, ओके, स्क्रू का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में डीए वेक्टर है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो यदि हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट जो है, सॉरी डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस हियर इट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डीए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड मूविंग आउटवर्ड, ये बाहर के डायरेक्शन में आएगा। ओके, जो आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेट किया, ठीक है, तो ये स्मॉल एरिया है। ओके, अब देखो, now suppose the element of area dA vector is situated in a magnetic field B vector। अब ये जो एरिया वेक्टर है ये कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड में। then the scalar quantity d phi is equal to B vector dot dA vector, इसको हम लोग बोलेंगे scalar quantity there because it is a dot product, B vector dot dA vector that is equal to magnitude of B vector dot magnitude of dA vector, that is a cos theta, to equation 12.6। तो d phi is equal to b into da, इन मैग्नीट्यूड शॉर्ट में आप लोग ऐसे बोल सकते हो दैट इज अ b da cos theta, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर यदि नहीं होता तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे बोल सकते हैं b da cos theta, वेयर नाउ ये जो क्वांटिटी हम लोगों ने निकाला दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स ऑफ b वेक्टर थ्रू एरिया da वेक्टर।
where theta is the angle between the direction of magnetic field B vector and the direction assigned to the area dA vector. मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, इन दोनों में जो भी एंगल होगा, दैट इज थीटा, दैट विल डिसाइड हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज जनरेटेड देयर. अंडरस्टूड दिस वन? तो यदि हम लोग ऐसे बोलते हैं थीटा का वैल्यू कितना है वो देखना है, ये वी आर गेटिंग द maximum magnetic flux if theta is equal to 0. Okay, as we are well known, cos 0 is equal to 1, तो वहां पे मैक्सिमम मिलेगा. एंड थीटा इज इक्वल टू, यदि 90 डिग्री होता है तो देयर इज अ नो मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस magnetic field and area vector, if both are perpendicular to each other, at that time there is a no magnetic flux is generated there. Okay, that magnetic field does not generate any magnetic flux when that particular area is perpendicular to the magnetic field. ठीक है. नाउ ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला 12.6 निकाला, दैट इज फॉर अ स्मॉल एरिया. अंडरस्टूड दिस वन? स्मॉल एरिया डीए के लिए था इतना d5. यदि इफ वी कंसीडर दैट दिस डीए इज अ पार्ट ऑफ दिस सेकंड डायग्राम, दैट इज एस सरफेस इज देयर. ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो भी. Now this can be generalized to define the flux over the finite area S. Finite area S के लिए हम लोगों को ये निकालना है. Now therefore, अभी फिर से एक डायग्राम देखो. अभी ये एरिया DA is a part of the finite area, that is a S. S is a finite area there. उसका ये छोटा सा पार्ट था DA. ये हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट निकाला था. Understood this one? Now therefore the area is divided into small sections of area DA so as to calculate the flux over each section and then to integrate over the entire area. मतलब इसका मतलब ये जो क्या बताया देखो, ये छोटे छोटे एरिया के लिए हम लोगों ने यदि निकाला और सबका यदि हम लोग एडिशन करते, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, एडिशन देयर, तो सभी स्मॉल एरियाज का हम लोगों ने एडिशन किया, तो ये पूरे सरफेस का, ये जो लार्ज सरफेस है एस, उसका हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं. Got it? Because we have considered that this surface S, finite area S, is divided into small sections of area DA. ऐसे छोटे छोटे एरिया DA से ये पूरा सरफेस बना हुआ, फाइनाइट एरिया बना हुआ है. अंडरस्टूड दिस वन? तो अब देखो यहाँ पे the flux passing through S is, यहाँ पे एस सरफेस से फ्लक्स कितना रहेगा, जैसे हम लोगों ने बोला, दैट इज टू कैलकुलेट इंटीग्रेट ओवर द एंटायर एरिया, मींस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ओवर द एरिया एस. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 12.7. मतलब यदि हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाला तो हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फाइनाइट सरफेस एस मिल सकता है. ठीक है. नाउ अब देखो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट every point changes with the time as well, then the flux phi will also change with time. मतलब यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यदि सेम नहीं है, it is changing from one point to the another point and it is changing with respect to time also, then the magnetic flux can be calculated. Phi is equal to phi, the function of time, is equal to integration of S B vector, that is a function of time, into dA. यहाँ पे B dA लिया था, अब यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया था मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके, फिक्स है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि आता है तो हम लोगों को इक्वेशन ऐसे मिलेगा. बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस फाइनाइट एरिया. ठीक है, दैट इज इक्वेशन 12.8. अब देखो, accordingly Faraday's law states that the induced EMF can be written as, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो मिल गया, तो अभी हम लोगों को EMF कितना मिलता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? as we are well know this one, that is E is equal to minus d phi by dt. Faraday's law है, is equal to minus d by dt of phi के जगह पे a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S, B वेक्टर, function of time into dA vector. Okay, by using this equation we can able to calculate the EMF, that is equation 12.9. ये आप लोगों हम लोगों को याद रखना है. Means 12.7, 12.8, 12.9 सिमिलर है.
ओके 12.7 12.8 सेम ही है, सिर्फ हम लोगों को ये कांस्टेंट और वेरिएबल ये इतना याद रखना है. ओके नाउ इन SI यूनिट द EMF E will be in volts, the flux phi in Weber and time t is in seconds. तो इस इक्वेशन के लिए हम लोगों को वो क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है, EMF E that is in the volts, flux phi is in Weber and time is in seconds. Unit of flux is Weber. ये भी आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट क्या याद रखोगे, एक बड़े सरफेस का हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो छोटे सरफेस का पहले निकालो और उसका इंटीग्रेशन निकालो थ्रू आउट द लार्ज सरफेस देयर. ओके देन वी आर गेटिंग द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. अंडरस्टूड दिस? तो आज हम लोगों ने ये जो क्वांटिटीज डिस्कस की है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द लेंज लॉ. Now, please subscribe the channel, like, share, and subscribe. Thank you for watching.